animator and their children's class teacher. There's a lot of children in this community, so we are planning on creating a children's class. We used to have a children's class, but those children graduated into our present youth. So now we're gonna establish a new group. There are these neighborhoods where people have been working for, 5 years. It hasn't come without a lot of sacrifice and dedication. For some people, it's required actually leaving their homes and moving into these neighborhoods. For others, it's students that are either in high school or university that make sure that they make that time to be with their group. Now we're beginning to see the glimmerings of what's come from this long-term commitment, but it's also required a lot of, I think, sacrifice. My animator moved in to a nearby building just so she can help us, and I was so happy. She's like a sister to me now. I can see it in her eyes that she has the potential to make our lives change. I'm gonna graduate and be an animator myself. And then the children I teach will be animators and we'll go on. In our cluster, there's very little that's truly flourished and strengthened that's been the work of a single person. It's always a team of people that consult together, that encourage one another, that compensate for one another. In working in this neighborhood, we have a team that comes together every week that supports the animators. So the animators will animate the group, and then we have 3 or 4 individuals who give their time every week and come and help with home visiting parents, with picking up the junior youth before the group, and just kind of being there to support and to talk with people in the neighborhood. When we first started the children's class, that's first summer, we had around 20 children come. But when the winter came, we had to move it inside to my home. And actually only one of the 20 children came. And despite our efforts, only one would come. And very easily we could have given up. But being part of a team in the neighborhood and having that support was really helpful in seeing the long-term vision and not to give up. Now, 4 years later, looking back, we've had around 50 children come through the program, and we have 2 strong classes, 5 of which have gone on to junior youth, which is also very exciting. In a number of different neighborhoods. What we're trying to learn about is how to strengthen the core activities, but also how to build this pattern of community life, which includes devotional gatherings, home visits, the feast, as well as neighborhood reflection meetings, and to celebrate holy days. The average cluster reflection meeting, maybe 40 or 50 people would come to. The first time we did neighborhood reflection meetings, 150 people came in aggregate. I mean, there were different gatherings, but suddenly you can see there's so many more people participating. Lately, I have been attending a lot of the community gatherings, and I feel that these meetings are a great way to share ideas and also get to know what's happening around my community. So what began as an intensive youth campaign to help move some young people through Book 5 some 6 years ago has now matured into a process in which young people are accompanying their community to actually begin to walk a path of service, to be able to prosper materially and spiritually. And although small, it's the seed of which future action can really be built upon. Because of these experiences, Toronto has been serving as a learning site, and we're accompanying junior youth coordinators from 10 other clusters to make similar advances, helping them to address the complex questions that arise out of the implementation of the program. Society says that we're kids and we can't really do much, and we think of ourselves as heroes and role models because we can do a lot if we put our mind to it. If you were here in this community 5 years ago, there was a lot of violence that was present in this community, but through the establishment of this program, the future generations were guided towards a more positive direction, and the service projects that they have done has impacted the community in a positive way, and presently you do not see violence in our community.
If we just do this in our group itself, it's only gonna change our minds. But if once I've seen people getting inspired and all the people joining in and us working as a team, I believe that we can make this place beautiful. भारत के उत्तर पूर्व दिशा में बिहार स्थित है। यहाँ पे गौतम बुद्ध आए और अपना ज्ञान अर्जन किया। बिहार शरीफ क्लस्टर में 6000 ऐसे लोग होंगे जो समुदाय निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में लगभग 1000 से ज़्यादा किशोर हैं जो किशोर कार्यक्रम से गुजर चुके हैं। हमारे किशोर समूह का नाम सत्यवादिता है। आज हम सब पर्यावरण के शुद्धता के लिए वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। लगभग 900 के आसपास में ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों के कार्यक्रम से गुजर चुके हैं और लगभग 500 ऐसे वयस्क हैं जो संस्थान प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। 60 प्रार्थनाएं सभा को संचालित किया जा रहा है। सभी आते हैं और उत्साह के साथ भाग लेते हैं और उनसे प्रेरणा पाते हैं। इन सब गतिविधियों की वजह से व्यक्ति, समुदाय और संस्थाओं में गहरा बदलाव आ रहे हैं। इस किशोर महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। हमें आप सभी का स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हुई। किशोर के लिए किशोर महोत्सव, बच्चों के लिए बाल महोत्सव। इन महोत्सव से समुदाय में काफी उत्साह पैदा होते हैं और जागरूकता भी पैदा होती है। किशोर मेला गांव के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे हम लोग कुछ सीखेंगे। सभी अपना किशोर अपना अनुभव बताते हैं कि हम क्या सीखें पुस्तक में। हमारे माता पिता देखकर खुशी हुए। ऐसी गतिविधि चलती रहे तो हमारा गांव में एकता और प्रेम बढ़ जाएगी।
जब समीक्षा बैठक होता है, वहाँ के महिलाएं, बच्चे, किशोर, युवा, वयस्क सभी वहाँ पे आते हैं और महोत्सव के रूप में मनाते हैं। परामर्श, निर्णय और समीक्षा की जो जगह है वो केवल समीक्षा बैठक ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत ऐसे परिवेश हैं जहाँ पे लोग आते हैं, समीक्षा करते हैं, परामर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। जैसे बच्चों के लिए बच्चों के शिक्षकों के लिए बैठक, अनुप्रेरक के लिए बैठक, सह शिक्षक के लिए बैठक और अध्ययनवृत्त कक्षा के प्रतिभागी। और इन बैठकों के कारण सीखने की प्रक्रिया में काफ़ी विकास हुई है। बिहार शरीफ क्लस्टर किशोर कार्यक्रम का लर्निंग साइट भी है। यहाँ पर हर 3 से 6 महीनों में ट्रेनिंग सेमिनार और समीक्षा सेमिनार का आयोजन किया जाता है, जिसमें कुछ 10 अन्य क्लस्टरों के जूनियर कोऑर्डिनेटर भाग लेते हैं, अपना अनुभव बांटते हैं और क्लस्टर में चल रही गतिविधियों का भ्रमण करते हैं और अर्जित सीख के आधार पर अपने क्लस्टरों के विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। हमने एक स्थानीय आध्यात्मिक सभा के संस्थाओं में देखा है कि उन्होंने केवल उन मित्रों के बारे में चिंतित नहीं हैं जो गतिविधियों में भाग लेते हैं, बल्कि वो पूरे गांव के मित्रों के कल्याण के प्रति चिंतित हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप वो ये सोचना प्रारंभ किए हैं कि कैसे हमारे गांव में सभी को आध्यात्मिक शिक्षा मिले। हमारा आध्यात्मिक सभा हरगामा और वहाँ के जो है कोऑर्डिनेटर सब मिल के जो है गांव, पूरे गांव का जो है सर्वे किया। हम लोग डोर टू डोर गए, इस हरगामा गांव के पूरे गली मोहल्ले को, प्रत्येक वार्ड को हमने जो है सर्वे किया। देखें कि हमारे पास कितने युवा, युवतियाँ और वयस्क बच्चे हैं। और सर्वे के हिसाब से जो है बच्चा और किशोर और यूथ और उसके लिए जो है क्लास का आयोजन किया। गांव का जो है 2000 जनसंख्या है, जिसमें 1600 जो है किसी न किसी रूप से जो है हमारे मूल गतिविधि में शामिल होते हैं और आते हैं। स्थानीय आध्यात्मिक सभा वह अपने गांव के सभी मित्रों के स्वास्थ्य के प्रति भी काफ़ी चिंतित हैं और उन पे उन्होंने चर्चा करना भी प्रारंभ किया है। आध्यात्मिक सभा और जो है वहाँ के जो है स्वास्थ्य के प्रति जो है बुजुर्ग आदमी का जो है यहाँ पे कैंप किए थे, आई कैंप। उसमें हम लोग मिल के, गाँव के लोग मिल के 10-12 गाँव में जो है न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था कि डॉक्टर आएंगे। तो उसमें जो है 400 लोग आए थे, उनका सफल इलाज हुआ था। क्लस्टर स्तर की जो संस्थाएं हैं वो गतिविधियों का जो चक्र है, लोगों का दैनिक जीवन का जो स्वाभाविक रूपरेखा है, के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हर लोग ज़्यादातर कृषि से ही जुड़े हुए हैं कि कहीं जैसे अभी कटाई का समय है, ज़बरदस्त जो है किसानों का इन्वॉल्वमेंट होता है खेत के। इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो अभियान होता है हमारा, इस समय हम लोग नहीं रख पाते हैं। तो हम लोग जब गतिविधि का प्लानिंग करते हैं तो उस समय युवाओं का एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर का और ये सब देखते हुए हम लोग करते हैं। यहाँ पर कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाता है और उस पंचायत का जो मुख्य होते हैं वो पंचायत प्रधान होते हैं। वैसे ही एक प्रधान ने सभी पंचायत वासियों को ये प्रोत्साहित करते हैं कि आप सभी अपने युवा, किशोर और बच्चे को इन गतिविधियों में शामिल कीजिए। मेरे पंचायत में अभी 8 गांव है और 28,000 की आबादी है, तो उसके विकास के लिए मैंने बार बार सोचते रहते हैं कि इसलिए जितने भी बच्चे किशोरियाँ हैं उन्हें प्रेरित करते हैं, जो मैंने अभी बाहर की तरफ से जो गतिविधि चल रही है इसमें जुड़े रहना चाहिए।
मेरे घर में 2 बच्चियाँ हैं और दोनों 1 से लेकर 6 तक पहुँच गए हैं और अच्छा चला रही है और हम खुश हैं। बच्चे बच्चियाँ हो उसका विकास होगा तो बिल्कुल गांव का विकास होगा और हमारा विकास होगा। संस्कृति के स्तर पे बहुत सारी बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से सदियों से चली आ रही पूर्वाग्रहों से लोग धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। हमारे भारत देश में जाति प्रथा की जो भेदभाव है बहुत गहन रूप से जकड़ रखा है। यह एक सामाजिक बनावटी व्यवस्था है। उच्च जाति और निम्न जाति के लोग आपस में न घुल मिल पाते हैं, न बैठ पाते हैं, न बातें कर पाते हैं, न साथ में खाना खा पाते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे दादा दादी कहते थे कि एक दूसरे जाति का घर नहीं जाना है और उनके यहाँ जाकर खाना उना नहीं खाना है, बातचीत नहीं करना है। तो लगा ये ठीक है। तो फिर रूहीबन और हाउला के पवित्र लेखों को अध्ययन किया और अपने दादा दादी को बताएं जो वो भी एक भाईचारा के रूप में हैं। तो उनके घर जाने लगे, खाना पीना खाने लगे, बातचीत करने लगे और एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। जिस रूहीबन पढ़ने से मेरा अच्छा बहुत दिमाग खुला। उससे सीख मिलता है कि जाति प्रथा नहीं हो सकता है। समाजों अभी देखते हैं तो बहुत खुशी आनंद लगता है। पहले के जैसा दुख किसी को भुगतना नहीं पड़ता है। पहले लोग बोलते थे कि मैंने अलग अलग जात घर में नहीं आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, दूर भाव करना चाहिए। जब स्टडी सर्कल के साथ हम लोग जुटे तो हम लोग के भेदभाव के नाम मिट जाने के लगा और स्वागत करने के लिए हम लोग आमंत्रित रहते हैं। अपने बच्चे को प्रवेश करते हुए हम निर्णय लिया कि हमने नहीं बताएं कि किस जाति का है, ताकि उसको मन में विचार नहीं आएगा कि ऊंचा है या नीचा, और ना ही सामने वाले को ऊंची या नीची नज़र से देख पाए। सभी को समान नज़र से देख पाए। हमारे संस्कृति में वयस्क और युवाओं के बीच काफ़ी दूरियां थी। पहले देखिए जो बुजुर्ग लोग अक्सर हमने कुछ बोल देते थे तो युवाओं लोग को मान लेवे पड़ता था, लेकिन संस्थान प्रक्रिया आने से काफ़ी बदलाव हुआ। अब हम लोग के अवसर मिल रहा है कि एक साथ बैठ करके युवा और बुजुर्ग लोग दोनों मिलकर परामर्श करते हैं और फिर परामर्श करके ही निर्णय लेते हैं। बुजुर्ग लोग जो कर लेते थे, निर्णय ले लेते थे, वो हो जाता था। लेकिन आज जो है जब से ये संस्था आया है तब से दोनों में तालमेल बढ़िया रहता है, बुजुर्ग में और ग्रुपों में। और पहले जो था नहीं है, बदलाव बढ़िया हुआ है और बहुत अच्छा लगता है कि महिलाओं को कभी भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है। उनकी क्षमताओं को हमेशा कम करके आंका जाता है। साथ ही लड़कियों को बहुत ही कम उम्र में उनकी शादियां कर दिया जाता है। वहाँ पे लड़कियों की कोई इच्छा नहीं चलता है। वहाँ पे कोई निर्णय लड़कियों से नहीं लिया जाता है, कोई परामर्श उनके साथ नहीं किया जाता है। हमारे पापा जी जो थे कम ही एज में शादी कर दिए थे, तो इस तरह से हमें पहले कुछ नहीं महसूस होता था कि शादी क्या है। और जब फिर हम यहाँ आए तो देखें कि घर से बाहर नहीं निकलना है, हमको मतलब घर के अंदर ही रहना पड़ता था। तो कोई आए थे तो बोले कि इस तरह का बुक है, आप करना चाहते हैं। मेरी सास किसी तरह से तैयार हुई, अपना हस्बैंड से भी पूछे, तो इस तरह से मैं बुक की पूरे। जब से हम इस संस्थान में जुड़ी हूँ हम देखते हैं कि बहुत बदलाव आ रहा है, बंधन भी टूट गया है। यहाँ पर संस्कृति में कि लड़कियों को घर से निकलने के लिए नहीं दिया जाता है। हम सिर्फ स्कूल से घर, घर से स्कूल जाते थे। लेकिन जैसे कि हम संस्थान प्रक्रिया में आए, हमें बाहर जाने का मौका मिला।
पहले शुरू में हमको डर लगता था कि कैसे हमें